Hello students, today myself Uday Kant Roy, physics teacher, welcome all of you in physics की बात। आज हम लोग फिजिक्स की बात में क्लास 11th से रिलेटेड टॉपिक की बात करेंगे। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। चैप्टर का नाम क्या है? ग्रेविटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। Gravitation is a phenomenon. Gravitation is a force act between two bodies in the universe. Force acts between any two bodies in the universe. That is called gravitation. But if that force, that gravitational force produces motion in a body, that becomes the gravity. Means suppose that the force acts between earth and other planet, between the other planets, so that is for the gravitation. But when the force acts between this marker or earth, because whenever we leave this marker, that will fall down. Why it will fall down? Because the earth will exert the force, because you know that कि force is in effect is there which try to change the position. So suppose that this marker is there, so if the force, so another way we can tell that if the gravitational force is experienced, that becomes the gravity. So for that first of all Newton has given one law, Newton's law of gravitation. Newton's law gravitation क्या दिया न्यूटन ने कि सपोज दैट दिस इज द टू बॉडीज इज देयर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर r having the mass m1 and m2. तो what else कि if we are taking F is their gravitational force, or gravitational force is always attractive in nature. So gravitational force act between the two bodies is directly proportional to product of their mass. What I told? Gravitational force act between any two bodies is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to a square of distance between them. अब ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो ऑन कंबाइनिंग वी गेट व्हाट इज दैट, F is equal to F directly proportional to m1 m2 by r square. So F is equal to capital G m1 m2 by r square. Here capital G is called, where capital G is called gravitational constant. What is called? Gravitational constant. This is also called universal constant. This is also called universal constant, and its numerical value 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. This is the 6.67 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg. This is the gravitational constant, universal constant, because everywhere, either on the Earth's surface or and at other planet, the value of G remains constant, so that it is called the universal constant. अब इसका यूनिट आपने देख लिया, दिस इज द यूनिट इज देयर। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला दिस इज द, तो ग्रेविटेशनल का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
So that is, you will find from here G is equal to F R square by M1 M2. You will calculate, you will get M minus 1 L3 T minus 2 gravitational constant. How will define gravitational constant? If it is asked, define gravitational constant. Define gravitational constant. G को define करना. How will define? सीधे. कहता if two body of unit mass, दोनों जो बॉडी का मास है वो यूनिट हो, two bodies of unit mass separated through distance of 1 meter, दोनों के मास 1 kg हो, दोनों डिस्टेंस कितना हो, तो इन सच ए केस क्या हो जाएगा, सीधे G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G अगर G इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर बाय 1 into 1, that is G is equal to, that means gravitational constant is numerically equal to, gravitational constant is numerically equal to gravitational force. gravitational जो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू gravitational force. Gravitational force acts between two bodies of unit mass, two bodies of unit mass separated through distance of unit meter, और that will be equal कितना हो जाएगा, अगर पूछा जाए वैल्यू तो 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन का ऐसे पूछा जाएगा अगर आपसे कि what is the magnitude of gravitational force act between the two bodies of unit mass separated through the unit distance apart, तो क्या कहोगे 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन. क्लियर. अब आ जाते हैं हम लोग क्या चीज पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है. अब है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity, it is denoted with capital G. It is denoted with capital G. Though suppose that यह एक अर्थ, suppose this is the earth is there, जिसकी मास m ले लिया, रेडियस r है, r. अब यहाँ से suppose that one body, एक small mass m मास की बॉडी फॉल कर रहा है with gravity, तो अल्टीमेटली दिस बॉडी कहाँ आ जाएगा, अर्थ सरफेस पर, यहाँ पर आकर के रेस्ट में हो जाएगा इसकी बॉडी m. तो यहां से पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना हो गया, ग्रेविटेशनल, क्योंकि फॉल किसके कारण कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर. ठीक है. अब डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, सपोज दैट इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी रेडियस इसका r है, लेकिन r जो है वेरी वेरी लेस विद रिस्पेक्ट टू r, सो दैट r की वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, सो दैट वी आर टेकिंग, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स ग्रेविटी व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड. तो यहां पर फॉल हो रहा है तो एक्सपीरियंस हो रहा है. अब न्यूटन सेकंड लॉ से क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ टेल्स F is equal to mass into acceleration, inertial force is there, तो F is equal to A की जगह पर अब क्या हो जाएगा, G हो जाएगा. तो whenever we compare both फर्स्ट एंड सेकंड, इसको और इसको जब हम कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग
फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, और this सीधे a small m and a small m will be cancelled, तो g is equal to g capital M by r। इससे पता चल क्या चला कि either a small body or bigger body is there, acceleration due to gravity is not affected। acceleration due to gravity only depends upon mass of planet, r of radius। किस किस पर डिपेंड करता है, m जो हो गया मास ऑफ प्लैनेट पर, मास ऑफ प्लैनेट, और दूसरा हो गया रेडियस ऑफ प्लैनेट। टू फैक्टर्स रेडियस ऑफ प्लैनेट, इसलिए एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो जी इक्वल टू यू हैव सीन जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू कर देते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और मास ऑफ अर्थ यू नो व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ 6 into 10 to the power 24 kg, or 6.4 into 10 to the power 6 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर कि m I told m is the mass of earth है, mass of earth। तो what is the value of mass of earth? 6 into 10 to the power 24 kg, this is the mass of earth। And r is the radius of earth, r is the radius of earth, so r is the radius of earth, radius of earth 6.4 into 10 to the power 6 meter। अगर एक कैलकुलेट करते हैं तो आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल गेट 9.7978 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लिख देते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसा बताए इट मींस कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। इट मींस ईच प्लैनेट हैविंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज मास सबका अलग अलग है हर एक प्लैनेट का, रेडियस भी हर एक प्लैनेट का क्या है अलग अलग। तो यू हैव टू कीप इन माइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन ओनली टू फैक्टर्स। कौन सा फैक्टर वो है, मास ऑफ प्लैनेट, और सेकेंड वन रेडियस ऑफ प्लैनेट। क्लियर? अच्छा, इसको हम डेंसिटी के भी टर्म में कर सकते हैं। मास को लेते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम मुझे 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट आल्सो। क्लियर? तो यहां पर हमने देखा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। अब हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होगा, वेरिएशन मतलब हाइट के साथ वेरिएशन एंड डेप्थ के साथ वेरिएशन। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग देखते हैं कहां पर, एट हाइट। सबसे पहले एट हाइट, तो हाइट पर देखते हैं। देखो दिस इज द अर्थ, ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर, यहां आपको निकालना है सपोज यहाँ जी डैश, और सरफेस पर जी, इसका मास m है। इसकी हाइट सपोज एट h है, एट पॉइंट P। तो सरफेस पर क्या हो जाएगा, एट सरफेस जो है g की वैल्यू हो जाएगा कितना, g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर, यू नो दैट एट द सरफेस। तो एट हाइट h पर क्या हो जाए, g डैश इज इक्वल टू g कैपिटल M, और इन प्लेस ऑफ r के जगह पर हो गया r प्लस h का होल स्क्वायर। हमें dg डैश की वैल्यू निकालना है, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करते हैं तो डिवाइडिंग g डैश बाई g इज इक्वल टू हो जाएगा gm अपॉन
आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई जी एम, कैंसिल हो गया। तो यहां से यहां पर हम लोग देखेंगे आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो वन तो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अब ये देखते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। दूसरा, इसी को एक्सपेंड अगर करें तो आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, दिस आर स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस एच बाई आर पर पावर -2। एक मैथमेटिक्स में होता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो इसको ए लेते हैं, इसको बी या ए प्लस एक्स कुछ भी फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम एक्सपेंडिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन 1 पर पावर 1 माइनस 2h बाई आर प्लस हायर टर्म लिखते हैं। जो पावर है प्रोडक्ट में ले आए, 1 का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, सब फॉर्मूला जो है बाइनोमियल पर ही एक्सप्लेन होता है। इसलिए g डैश जो हो गया g 1 माइनस 2h बाई आर, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेक्टेड, हायर टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड। तो व्हाट वी गेट g डैश गेट लेस देन g। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे ही हम अर्थ सरफेस ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होते जाती है। 9.8 जो है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अब जनरली फार्मूला हम लोग यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, बट फॉर द कंपैरिजन कि वेदर इट डिक्रीजेज और इंक्रीजेज, जस्ट वी अप्लाई वन बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करते हुए आता है दिस वे। So okay, thank you all of you. In next video we will meet again.